Hello, good morning student. Today we are going to start our new chapter from paper second, that is towards green energy. Yes, okay. Chapter name is very interesting, towards green energy. Yes, in our daily life we have used a different kind of energy, but we have listened the towards green energy. That time we have get somewhat different here because it's one our today's requirement because the today's become an energy crisis because in previous chapter we have learned that the environments, yes, and how it's become necessary to conserve the environment, to save the environments. It's okay. And related to that saving environments, we have already learned the managements of environments. We have learned that. Actually, this topic is also totally related to the environment here. So we are going to let us start here towards green energy. So we all think about this lesson. Before going to this lesson, we have firstly learns which factors we have included into this chapter. These factors are given here. Just okay, I have tried to show to you which factors we are dealing here for the our study curriculum. The first is use of various energy sources. ठीक है? In our daily life, you have used a different kind of the energy sources. Can you tell me which are the energy sources? That time, your answer surely comes. Yes, we have said air, water, है ना? These are one of our natural energy sources. है ना? हम इसको विंड के द्वारा हम यहाँ पे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. वाटर के द्वारा भी हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक power station, wind power station. Just we have we have generate the electricity there. Just okay, as well as the flowing streams. Yes, is also cause of to generate the electricity here. So in this way, these are one of our natural energy sources, as well as that is a biomass. It is also one good important natural sources we gets in nature. So these fundamental sources are very important, and belonging to that fundamental resources, we have used it and we have regenerate, we have produced the energy, electricity. It's okay, our energy requirements. And today's age is a very important is about the energy because we have things about the today's people needs that time. Previously, we have think the food, shelter, and clothing. These are one of fundamental needs. But the today's need is the energy. Is one of them. This is a very important. So uses of various energy we have use is in our daily life. We play the tape recorder. We play the televisions. That's okay. We play the different kind of the electric devices, electric gadgets we have used there, and for their functional, for their maintaining, we require the energy there. That is the electricity there. Yes, okay. And this is the various energy sources to required in human life. Again, we have learned here generation of electricity or electrical energy. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है, देयर जनरेशन, उनकी निर्मिति है ना बेटा, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे. समझ में आ रहा है? एक्चुअली इसके बाद प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरमेंट्स. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते समय जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और एनवायरमेंट, इनका कोई रिलेशन है क्या? Obviously, of course, they are the totally depends on with each other. They show the correlation with each other because when you have produced the electricity, that time you have used the fundamental natural sources, resources of energy, and with the help of that sources, we generate the electricity. Without
that fundamental resources we can't regenerate the electricity. It's not possible because we have generated electricity that time we have already learned in previous chapter. That is a uh, mechanical energy. Means the mechanical energy convert into electric energy. And for that mechanical energy, for the turbines rotations, we require the lot of energy. And such energy we have used by these fundamental natural sources. That is renewable type of energy, non-renewable energy. Yes, we have learned in our previous standard, 6th standard, 7th standard, we have already learned them. So actually in this chapter we are going to this point, we have touches to this point, that is the फर्स्ट हम क्या देखेंगे, ऊर्जेचा वापर, है ना, ऊर्जा कैसे यूज की जाती है, ये हम फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे फोकस करेंगे. आफ्टर देन सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऊर्जा निर्मित कैसे की जाती है. और तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पे हम ई बुक में लर्न करने वाले हैं, दैट इज विद्युत निर्मित करते समय उनकी प्रोसेस और एनवायरमेंट, इस इनका कोरिलेशंस. ठीक है, सो वी हैव गो details in this chapter. Before it, we have tried to recall our knowledge. It's okay, and for the recalling the knowledge, we ask some question here. So we have tried to solve this question and get their answer. Simple questions are given here. So can you recall? So first question is what is the energy? चलिए बेटा, कौन बता सकता है एनर्जी क्या होती है ना, कोई है आप में से कोई बता सकता है. तो एनर्जी इज अ, देखिए एनर्जी इज ए दैट इज अ रेट ऑफ वर्क इन पर यूनिट टाइम. रेट ऑफ वर्क इन अ पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ एनर्जी. ठीक है, इसके लिए मैं अक्सर एक तुम्हें उदाहरण देता हूँ. जैसे कि दे बेटा, एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा और एक उनके दादाजी हैं, दोनों घूमने घूमने गए वाले हैं. तो उनको कुछ ऐसे स्टेयर चढ़ने हैं, कुछ जीने पे जो पायरी बोलते हैं ना उसको स्टेयर चढ़ना है. तो स्टेयर चढ़ते समय उनको 20 स्टेयर है या 20 पायरी है उसको, तो वो चढ़ते जाना है उनको. तो दोनों भी चलते जा रहे हैं, दोनों भी काम कर रहे हैं, दोनों ही ऊपर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली उनमें से सबसे आगे कौन जाएगा, वो छोटा सा बच्चा, क्योंकि he do the work, both do the work there, but the yes means they require the different time here, means the that's grandfather, they require the more time, they take a more time, but the their yes that is one have a childs just okay. उनका जो ना छोटा है बच्चा, वो क्या हो रहा है बेटा, आगे चलता जाता है, दौड़ते जाता है, दादाजी मैं आ गया ऐसा बताता है ना बेटा. तो ये वो क्या करता है बेटा, दैट्स वन दैट टाइम इन दिस प्रोसेस द एनर्जी दे यूज द लॉट ऑफ एनर्जी देयर, मीन्स यस दोनों ने काम किया है, दोनों ने सेम काम किया है, दोनों ने सेम स्टेयर उन्होंने क्या कर दिया बेटा, एक्यूपाई कर दिए, स्टेयर राइज अप करते हुए गए वहां पे एक्चुअली. लेकिन सबसे पहले यहाँ पे छोटा बच्चा गया, इसीलिए एनर्जी सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल करता है वहां पे, छोटा बच्चा. चलिए, तो यहाँ पे पर यूनिट टाइम, इसीलिए यहाँ पे क्या रहा बेटा, पर यूनिट टाइम. समझ में आता. तो एनर्जी की डेफिनेशन हम कैसे देंगे, दैट इज अ रेट ऑफ वर्क per unit time, rate of work per unit time. yes okay, it's very important, ये एग्जाम के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा बेटा. ठीक है, तो एनर्जी की डेफिनेशन, yes we have recall the our knowledge, yes okay, and after this become a fresh, after getting this total answer, yes we became a able to learn this or the study for the towards green energy. So again second question is what are the different type of energy, what are the different type of energy. yes in our surrounding there are different kind of energies, है ना, हम देखते हैं ना अलग अलग यहाँ पे एनर्जी हमें दिखाई देती है ना. देखिए देखिए कौन सी एनर्जी, जैसे हम चलते हैं, अभी मैं तुम्हें yes I have talked to you, yes okay, that time what I use here, I have used also one kind of energy. Yes, can you tell me which kind of energy I have used here? That is a muscular energy. Just okay, because when I have talked to you, that time my yes
body movements, just okay, my mouth, they show the one particular movements, my tongue movements, and such movement is with through the muscles, that is a muscle energy, muscular energy. When I walk along the road, that time I have also used the muscular energy, ठीक है, gravitational energy. Yes, I have opposed to that gravitational energy. That's okay, that is a gravitational energy. As well as the दूसरा इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना. एक्चुअली इसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी हम देखते हैं, मस्कुलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है ना बेटा, एज वेल एज द मैकेनिकल एनर्जी है. मैकेनिकल एनर्जी मीन्स दैट इज वन हैव बोथ इंटरेक्टिंग, दैट इज द kinetic energy and potential energy, just they are show yes with uniform, that's we have as a मैकेनिकल एनर्जी है ना. जैसे कि दोनों एनर्जी मिलकर हमें जो एनर्जी मिलती है, हमें उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी. तो एनर्जी आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी है ना बेटा, जैसे विंड एनर्जी है, जैसे एज वेल एज द साउंड एनर्जी है, दैट्स वन हैव अ न्यू काइंड ऑफ द एनर्जी, साउंड एनर्जी. एक्चुअली ये भी एक एनर्जी का टाइप होता है ना बेटा. वर्क इज अ वर्क, एक क्या बेटा, वर्क इज वन एक्चुअली यस इट इज अ मैकेनिकल जस्ट सपोर्ट होता है, जैसे कि उसको एनर्जी लगती है वर्क करने के लिए, ठीक है. लेकिन एक्चुअली यहाँ पे वर्क, जैसे कि वर्क फॉलो ऑन करने के लिए एनर्जी जरूरत होती है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं बेटा, हीट, हीट भी एक प्रकार की एनर्जी होती है ना. लेकिन वर्क ए मैकेनिकल एनर्जी है, ध्यान दीजिए, वर्क इज अ मैकेनिकल टाइप ऑफ एनर्जी एंड हीट इज अ यस एक्चुअली यस इट इज वन आल्सो एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी है ना. लेकिन हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी, इसको भी हम एनर्जी बोल सकते हैं, हीट और वर्क. एक्चुअली दोनों का यूनिट भी सेम होता है. हम पिछले वाले पीरियड में हम उसको ज़्यादा फोकस किया है, वहाँ पे लर्न किया है एक्चुअली, ठीक है बेटा. ये भी एनर्जी में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं. इसके बाद अगेन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बिकॉज एनर्जी हमने पढ़ा था एक रूल्स. यस, कैन यू रिमेम्बर, थिंक कीजिए, थोड़ा सा रिमेम्बर करने का प्रयास कीजिए. वी हैव लर्न वन रूल देयर, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन रूल. What you learn there means energy not be created, not be destroyed, but it converts one forms to the another form of energy. Yes, we have learned there means the energy always yes occurs in a different forms. देखिए बेटा, अभी यहाँ पे अपनी क्लास में जो फैन रोटेट होते हुए दिखाई दे रहा है, दैट इज अ yes which kind of energy, that is one of kinetic energy, है ना. अभी देखिए हम टीवी ऑन करते हैं, तो एक्चुअली व्हेन वी ऑन द टीवी, दैट टाइम वी गेट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी. जैसे हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाई देते हैं, दैट इज वन ऑफ लाइट. एक्चुअली वी हैव लिसन द साउंड, वी हैव विच ऑडियो विजुअल होता है, वहाँ पे जो दिखाई देता है हम उसको विजुअल बोलते हैं, जो सुनाई देता है हम उसको ऑडियो बोलते हैं, ठीक है बेटा. मीन्स बहुत एनर्जी, यानी कि ध्वनि ऊर्जा भी मिलती है और प्रकाश ऊर्जा भी मिलती है, ठीक है. दैट इज वन. सो हमें यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स दिखाई देते हैं. जैसे हम आयरन उसको ऑन करते हैं, तो आयरन ऑन करते समय वो क्या करता है बेटा, वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. हीटर है, हीटर वाटर है ना, हम जैसे गर्म करते हैं, सुबह सुबह नहाने के लिए पानी गर्म होना चाहिए, तो एक्चुअली एट दैट टाइम हम यूज द विच काइंड ऑफ एनर्जी, दैट इज अ हीट एनर्जी. मीन्स द कन्वर्सेशन मीन्स द लाइट एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. मीन्स यहाँ पे आंसर मिल गया हमें. व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मीन्स द एनर्जी आर ऑलवेज ऑकर इन डिफरेंट फॉर्म्स. वहाँ पे एक रूल है, दैट इज अ एनर्जी कंजर्वेशन रूल, एनर्जी कंजर्वेशन रूल. यस, what we learn there means energy not be created, not be destroyed, but it converts one forms to the another form of energy. चलिए बेटा, तो ये हमने यहाँ पे लर्न किया है. एक्चुअली देखिए बेटा, हमें यहाँ पे एक दूसरे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे चलना है, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी करेंगे डिस्कस करते हुए. तो ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दिया है और उससे हम यहाँ पे डिस्कस करना है. एक्चुअली डिस्कस करना है बोले तो एक सिंपल सा डिस्कस करते समय एक्चुअली हम यहाँ पे क्या करते हैं, मदद लेते हैं ना बेटा, आपस में चर्चा करते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे, तो उसी ग्रुप में अपने फ्रेंड्स में हम यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी लर्न करेंगे. लेकिन यहाँ पे ये हमें करना है, ठीक है बेटा. तो यहाँ पे क्या करना है, मेक ए लिस्ट ऑफ वर्क दैट वी डू आवर डे टू डे लाइफ.
Yes, okay. Using the energy. Which forms of energy do you use? Do this work. Discuss with the friend. चलिए अभी हम यहाँ पे एक टेबल बनाना है. चलिए तो टेबल में हमें क्या करना है. पहला टेबल हम क्या करेंगे, बनाना है टेबल. अभी बच्चों बनाइए अपने पास. जैसे कभी भी पीरियड लिसन करते हो, कोई भी ऑडियो तुम सुनते हो, तो अक्सर अपने पास एक नोटबुक या पेन होना चाहिए. क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं हम, दोस्ती होती है ना, ये दोनों चीज़ों से बनाना है, नोटबुक से और पेन से. बिकॉज नोटबुक एंड पेन इज अ वेरी गुड फ्रेंड. Just okay, they enhance to your power, they enhance to your knowledge. Just okay, and that's why always we have this put yourself or the put नियर टू यू. इस अपने पास अपने अक्सर समय जैसे कि सामने वो अपने पास होनी चाहिए. अक्सर पेन या नोटबुक होना चाहिए, है ना बेटा. तो झट से हम वो नोटबुक और पेन निकाल कर रखना है और वो करना है. तो चलिए, तो यहाँ पे नोटबुक के दो पेजेस, दो एक पेज के ऊपर हमें दो हिस्से बनाना है. एक हिस्से के ऊपर क्या करना है बेटा, एक हिस्से में हमें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और दूसरे में क्या करना है बेटा, उसके वर्क. एक्चुअली देखिए बेटा, आयरन है, तो व्हाट इज द विच फॉर्म ऑफ आयरन. आयरन दैट्स वन डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है. एक्चुअली आयरन यूज करते तो इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म्स के यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, दैट इज हीट एनर्जी फॉर्म. हीट एनर्जी फॉर्म यहाँ पे हम इसके वर्क, यहाँ पे देखिए यूजेस वर्क मिल रहा है, तो दैट इज वन है इस, हम क्या कहते हैं, फोल्डिंग टू द क्लॉथ्स, क्लॉथ को फोल्डिंग करने के लिए. चलिए, जैसे कपड़े वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद वो कपड़े क्या होते हैं बेटा, जैसे वहाँ पे इतने सारे ऐसे फोल्डेड होते हैं ना बेटा. एक्चुअली वहाँ पे पूरे फोल्डेड होने के कारण वो जैसे हमें पहनने में अच्छे नहीं लगते, तो हमें उसको क्या करना है, थोड़ा सा प्रेस करना है. प्रेस करने के बाद वो क्या बनते हैं, दैट्स टोटली दैट्स वन आपण म्हणतो ते सुरकुतलेले किंवा झुरमुळल्यासारखे असतात. तर when you have apply the iron there, yes okay, we have take the press there, that time it's become a, that's a plain, yes okay, and systematic fold there. हमें मिलते हैं फोल्ड, लेकिन कैसे फोल्ड मिलते हैं, सिस्टमेटिक फोल्ड, दैट इज वन यूज. अभी यहाँ पे देखिए फैन है, तो फैन which kind of which form of energy, that is a kinetic energy form. which form of energy, kinetic energy. अभी कन्वर्सेशन है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं बताया एनर्जी का फॉर्म. अभी ये काइनेटिक एनर्जी, यस वी हैव यूज, हम यहाँ पे डेली लाइफ में भी उसको यूज कर रहे हैं. कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, चलिए बताइए. तो ये है, यस वी हैव गेटिंग द, यस दैट इज अ टोटल कोल्डनेस. यस ओके, actually we have get the maintain the temperature of environments or the our room, है ना, अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसको कायम बनाने के लिए. इस जिस एक्चुअली अपने बॉडी को फेवर में लेने के लिए हम वो फैन वहाँ पे यूज करते हैं. तो यहाँ पे फॉर्म कौन सा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी. लक्ष्य ध्यान में आ रहा है बेटा. एक बाजू में हमें क्या करना है, जैसे कि डिवाइस के नेम भी कर सकते हैं, 3 कॉलम बनाना है, एक डिवाइस का नाम रखना है, एनर्जी के फॉर्म्स लिखने हैं, फिर वहाँ पे उसके अपने डेली लाइफ में हम उसको वर्क या यूज, वो वर्क कैसे करता है, यूज कैसा होता है, ये हमें यहाँ पे लिखना है. लेकिन ये कैसे डिस्कस करते हुए, क्योंकि हम जब डिस्कस करेंगे हर एक से दो दो या तीन तीन एग्जाम्पल मिलेंगे. तो देखिए बेटा, अपने क्लास में जितने सारे बच्चे हैं उनके ओर से मुझे दो दो एग्जाम्पल मिले, तो देखिए कितने सारे एग्जाम्पल बनेंगे. क्योंकि हम एक ही इलेक्ट्रिक डिवाइस यहाँ पे यूज करते हैं क्या, नहीं, सुबह से शाम तक हम जब देखते हैं तो अपनी लाइफ में बहुत सारे हम इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करते हैं. एंड बिलोंगिंग टू दैट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, yes we have gets the different forms of energy, yes their works and uses in our day to day life we have learns here. This is very simply one there, so we have try it. लेकिन हमें करना है बेटा. चलिए, मैंने यहाँ पे जैसे तुम्हें बताया और तुम्हें बताया कि ये करो अब, तो यहाँ पे करो करो और छोड़ दो ऐसा नहीं, तो यहाँ पे हमें जरूरी करना है, हमें इनहांस करना है, तो हमें अच्छा बनाना है. तो ठीक है बेटा. चलिए, एक्चुअली एनर्जी हम यहाँ पे यूज करते हैं, मीन्स एनर्जी एंड यूजेस ऑफ एनर्जी, है ना. एनर्जी को हम यूज करते हैं, है ना, क्योंकि एनर्जी एक महत्वपूर्ण होती है. जैसे कि फॉर survive to man, yes there are some necessary factor, that is a food, shelter and cloth, these are a fundamental necessary factor. Yes, but belonging to it there is a one another important factor also here, that is a energy. तो एनर्जी
महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, बिकॉज विदाउट एनर्जी यस वी कांट डू सर्वाइव वेल सस्टेन लाइफ। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे, तो मैंने बताया अन्न हो, वस्त्र हो, या कोई अपने शेल्टर के लिए से हम निवारा बोलते हैं उसको, ये अपने लिए बहुत ही जरूरी होते हैं इन आवर कल्चर। ठीक है, अभी देखिए बेटा, एक्चुअली अपने कल्चर में एनर्जी भी उतने ही मायने रखता है। ठीक है बेटा, तो एनर्जी भी एक ह्यूमन की दिस इज बिकम अ प्राइमरी नीड्स, दिस फंडामेंटल नीड ऑफ ए ह्यूमन जैसे ओके। देखिए, तो अपने को लाइफ सर्वाइव करने में डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी वी हैव यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स। समझ में आ रहा है? तो मैंने तुम्हें जो पहले वर्क जो बताया था, तो वर्क क्यों बताया था, क्योंकि हम अपना जो जीवन सर्वाइव करते हैं तो हमें अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी यूज करना पड़ता है, अलग अलग फॉर्म्स में, तो ही हम अच्छा खासा अपना जो जीवन है उसको व्यतीत कर सकते हैं, अच्छा डेवलप्ड बना सकते हैं, प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए, तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे, जैसे कि टेक्निकल जो डिवाइस होते हैं उनको भी एनर्जी लगती है, जैसे कि उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि भी फैन, ये मैकेनिक है ना बेटा, ये घूमता है ना बेटा। तो यहाँ पे जैसे कि अभी मोटरसाइकिल है, साइकिल में भी हमें वहां पे उसको घुमाना पड़ता है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान दीजिए, मैकेनिकल एनर्जी, साइकिल जैसे हम मसल फोर्स यूज करके, मस्कुलर एनर्जी यूज करके जैसे उसको पहिए घुमाते हैं, तो साइकिल आगे आगे चलती हुई दिखाई देती है। ठीक है बेटा, तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, ध्यान दीजिए, मैकेनिकल एनर्जी दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर फॉर्म है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे कि हम कुएं में से पानी निकालते हैं, साइकिल चलाते हैं, है ना, एक आदि कोई ज्यादा वजनदार वस्तु हो उसे ऊपर खींचते हैं, है ना बेटा, तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हम यूज करते हैं, है ना। तो उसी तरह से अभी केमिकल एनर्जी, जैसे देखिए बेटा, केमिकल एनर्जी बोले तो क्या, टुडे वी हैव यूज द केमिकल एनर्जी, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंस रोल इन ह्यूमन लाइफ, है ना। चलिए हम बैटरी यूज करते हैं, तो बैटरी में क्या होता है बेटा, वहाँ पे ड्राई सेल्स होते हैं, है ना बेटा, कभी कभी यहाँ पे वेट सेल भी होते हैं। तो इन द ड्राई सेल्स मीन्स देयर आर सम केमिकल्स, yes okay, and due to that chemical process yes we have get the electric energy. So in that chemical process there is a potential difference, create the particular potential difference, and if they are having the potential difference, yes, till up to that time they show the electric current flow there, just like this. So in this way we have used here, that is a acid battery, yes okay, as well as the dry accumulators, है ना। तो ये हमें बहुत सारे केमिकल एनर्जी के रूप में दिखाई देते हैं, या हमें डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला देखिए बेटा, दैट इज अ साउंड एनर्जी, वी हैव यूज द लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, यस ओके, different say music instruments we have used there, and such devices they create the particular kind of the energy, that is a sound energy। वो वाली कौन सी एनर्जी होती है यहाँ पे, साउंड एनर्जी। चलिए, जो रेडियो सुनते हैं तो हमें साउंड एनर्जी मिलती है ना, टीवी देखते समय भी हमें साउंड एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी भी मिलती है वहाँ पे। चलिए, तो ये से अलग अलग एनर्जीज मिलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी वन है कॉमन, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, CFL जैसे अलग अलग हम यहाँ पे भी बल्ब देखते हैं, लीड के बल्ब है, so they give the light just okay because they are the fluorescent color just okay, and they just regulates, they immerse the light, just okay, and due to that immersing the light they reflects, and the reflections, yes, the area become lightened here, and it is also an important, it's become one common need, and without lights we can't survive our life। जैसे ओके, देखिए सादा सा एग्जांपल है, अभी हमें कल एग्जाम देनी है ना, अपने टीचर ने हमें बताया हम कल एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तो हम क्या करते हैं बेटा, तो लाइट नेसेसरी है, जैसे कल एग्जाम है तो हम तैयारी करने लगते हैं, है ना, अपने फ्रेंड को भी बुलाते हैं और बैठते हैं हम स्टडी को, शाम को 7 बजे बैठे, और 7 बजे बैठे और पढ़ाई करना शुरू हो गया, क्योंकि कल हमें एग्जाम देना है। तो हम खुद कैसे इंटरेस्टेड माइंड से वहाँ पे पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन सडनली इलेक्ट्रिक सप्लाई टोटली डिस्टर्ब, व्हाट हैपन दैट टाइम, यस योर वर्क इज जीरो देयर, हम कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाते,
Yes, so it's one necessary means lights play the important role in human behavior or the human life, day to day life. yes, अभी ये इतना डिटेल्स बताने के लिए यहाँ पे इतना समय ही नहीं है एक्चुअली, समझ में आ रहा है बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन डिफरेंट एनर्जी जैसे कि हीट एनर्जी, जैसे हीटर है, आयरन है, बहुत सारे। हाँ, इसीलिए तो मैंने वो तुम्हें लिस्ट बनाने के लिए बताया था। यस, जो बच्चों ने वो लिस्ट बनाई, यस, उनको ये थ्योरी नेचुरली ऑटोमेटिकली दे मगर दे उनको उन लर्न होगी, है ना बेटा। अभी ये थ्योरी हम देखिए यहाँ पे दी वाली है, थोड़ा सा हमें रीड करके हम इसको समझ लेते हैं, है ना। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन एनर्जी बिकेम ए प्राइमरी नीड्स along with the food, cloth and shelter. We needs the energy different forms for a different device, है ना। देखिए डाइवर्स टाइप ऑफ वर्क, डाइवर्स यानी कि विविध, वैविध्य हम बोलते हैं, क्योंकि एक ही वर्क नहीं होता है लाइट में, दैट इज वाई वी यूज द डिफरेंट डाइवर्स टाइप। जैसे कि हमें लाइट होना चाहिए, यस, जैसे मैकेनिकल एनर्जी होनी चाहिए, हीट एनर्जी होना चाहिए, ठीक है, जैसे साउंड एनर्जी होना चाहिए, दैट इज डाइवर्स, ये डाइवर्स है। and the energy that need we may be the yes in form of a mechanical energy, chemical energy। जी जो मैंने बताया, जो तुमने वो लिस्ट बनाई थी वो वही इसी पॉइंट्स में हमें दिखाई देता है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। यस, हाउ डू यू get these different form of energy, just and it's a very important here। yes, can you clear? so देखिए बेटा, तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई देता है, तो ये थ्योरी यहाँ पे हमें रीड करना है सही ढंग से समझ के, यस, विद अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे स्टडी करना है। चलिए, तो देखिए अभी हम दूसरे स्लाइड में आते हैं। इट्स वेरी सिंपल स्लाइड। एक्चुअली हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी फॉलो करना है। देखिए बेटा, दिस योर क्वेश्चन पैटर्न इज टोटली डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटी बेस। तो एक्चुअली ये एक्टिविटी में हमें ऐसे पूछा जा सकता है, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया बेटा, मेक ए टेबल, मेक ए टेबल, यस, मेक ए टेबल बेस्ड ऑन फॉर्म ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग डिवाइस। यहाँ पे डिवाइस का नाम लिखना है और वहाँ पे फॉर्म्स लें, जैसे कि अभी रेडियो है, करस्पॉन्डिंग डिवाइस रेडियो, अभी उसका क्या है बेटा यहाँ पे फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ क्या मिलेगी रेडियो से, मुझे मिलने वाली एनर्जी बताना है। उसकी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक एनर्जी, यस, उसको थोड़ा सा छोड़िए, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट टू साउंड एनर्जी, बट हम जब रेडियो सुनते हैं तो हमें एनर्जी कौन सी मिल रही है, साउंड एनर्जी, ए आई एम पी है। फैन, जब फैन सुनते हैं तो एनर्जी कौन सी मिल रही है, काइनेटिक, ठीक है। चलिए, समझ में आता, फॉर्म्स तो अलग बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जैसे एक डिवाइस का नाम लेता हूँ तो जट से तुम्हें कौन सी एनर्जी फॉर्म दिखाई देता है, जैसे आयरन, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट, जैसे हीटर, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक बल्ब दैट इज अ लाइट एनर्जी। समझ पा रहे बेटा। हाँ, तो यहाँ पे अलग अलग एनर्जी, जैसे हम यहाँ पे साइकिल दिखते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी, मोटार एक मैकेनिकल एनर्जी है एक्चुअली, समझ में आ रहा है। तो सच लाइक दैट मीन्स वी हैव गेट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसे टेबल हम बना सकते हैं, एग्जाम में वैसे ही कुछ हमें कुछ एक टेबल दिया होगा, उसमें कुछ डिवाइस के नेम दिए वाले होंगे और हमें वहां पे उसको उसके एनर्जी के फॉर्म्स वहां पे बताना है, ठीक है, एक सिंपल सा। अभी देखिए बेटा, वी नो दैट्स द yes, that energy can be the converted forms one forms to the another form। इसीलिए तो मैंने वो कंजर्वेशन लॉ बताया था, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म्स टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड these are one have different sources of energy are used in a different forms। हम अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी को यूज करते हैं, ठीक है ना, एक ही एनर्जी, इसीलिए तो वहां पे डाइवर्स ऐसा शब्द यूज किया था, ठीक है ना बेटा। तो देखिए एक्चुअली ये एनर्जी अभी इन प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने क्या लर्न किया था बेटा, यस वी हैव लर्न देयर ओनली अबाउट द एनर्जी देयर सोर्सेस, है ना, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, वी हैव लर्न देयर, यस ओके। एक्चुअली वी हैव हियर, अब यहाँ पे हम यहाँ पे वेरियस कंसेप्ट रिलेटेड टू द दूसरे वाले कंसेप्ट हम यहाँ पे लर्न करेंगे एनर्जी से रिलेटेड। यस, वेयर वी हैव we learn here about the various sources and that are now used for the generations of the electric energy। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे जनरेट किया जाता है ये भी हम यहाँ पे हम लर्न करेंगे, जैसे कि and the methods that are used for this the scientific principle, which is the scientific principle, कोई बता सकता है बेटा, क्योंकि हमने इसके पहले
एक लेसन पढ़ा है, वहां पे एक साइंटिफिक प्रिंसिपल था एनर्जी जनरेशन के लिए। हाँ, चलिए ट्रेस कीजिए अपने माइंड को और बताइए आंसर। दैट इज EMI, electromagnetic induction. Electromagnetic induction is a principle, and using that principle, Fleming right hand rule. ठीक है, and using that principle we have produced the generate the electricity, that is a AC generator and DC generator, है ना। तो खाली हम जो पिछले वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो भूलने के लिए नहीं पढ़ते, उसे याद रखकर आगे चलना है। ठीक है, तो देखिए उसी प्रिंसिपल को लेकर, तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे अभी देखने वाले, इट्स बिकॉज yes it is a stress floor, it is a focus point of this lesson. So the method that are used for this, the scientific principle and that are used there, the advantages and disadvantages, इसके हम advantages देखते हैं, जैसे कि AC DC का advantages disadvantages था, तो यहाँ पे advantages कौन थी energies थी अपने लिए, AC वाली थी, इसलिए हम इंडिया में हम AC जनरेटर को ही प्रायोरिटी देते हैं जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है बेटा, तो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो यस इट्स मीन बाय द ग्रीन एनर्जी। अब यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी होती है, तो ग्रीन एनर्जी में हमें जैसे ये ग्रीन एनर्जी सोर्सेस ये कैसे बनती है, कैसे बन पाती है, इसको हम अभी यहाँ पे लर्न करेंगे। देखिए दिस इज इंट्रोडक्टरी अकाउंट ऑफ दिस लेसन, इट्स ओके। नेक्स्ट पीरियड वी विल गो टू द thoroughly into this chapter. Actually again we have focused here two questions, इसके ऊपर हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू यूज द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन आवर डे टू डे लाइफ। चलिए बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी डे टू डे लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, चलिए दैट इज अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक डिवाइस को फंक्शनल बनाने के लिए, उसको यस फंक्शनल करने के लिए, है ना बेटा। तो विदाउट, देखिए अपने पास बहुत सारा, मैंने बहुत सारी एक महंगी टीवी लाई है या कंप्यूटर मेरे पास है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यस, तो क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, वेयर डू यू यूज द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन आवर डे टू डे लाइफ। यस, वी हैव यूज द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन आवर डे टू डे लाइफ फॉर functioning the different electric devices and obtain their different forms. Yes, okay, and we have complete our daily needs. Yes, okay, and we have sustained our well developed lifestyle. ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी इज बिकम ए मोस्ट नेसेसरी। अगेन हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, electric energy is produced by using the natural resources. Yes, and we have rotate the turbines, that is a mechanical energy convert into electric energy, mechanical energy convert into electric energy by using the which principle, electromagnetic induction। समझ में आ रहा है, तो we have go to the details, so today we have stop here, so we will see tomorrow, thank you।